Hello everyone, this is Shiva Singh here, your SST teacher, and today we are going to start the topic of civics, that is the Indian Constitution. Before starting the topic, I would like to give you some instructions. At the end of this video, you will be getting few questions. You have to do those questions in any of the notebook. If you are having fair, do the question in the fair copy. If you are having rough, so you can do it in the rough also, or in anything else whatever you are having at the home at this time. There is no issue for that. So let's begin the first topic, that is the Indian Constitution. I think that previously also you may have studied about the Constitution, and this is the very important chapter till the class 10th. In every section, in every year, you will be getting this Constitution chapter, because it gives us the knowledge about the laws and how our country works, how it performs, everything and all those things you will be getting here. So let's move towards it. First very thing is, what is Constitution? So many definitions are available here. I have given you some, and if you will search it online or on Google or somewhere else on any other search engine, you will be getting so many different definitions of the Constitution. Constitution basically is a set of rules and principle which is acceptable by all the people of India, of a country. I am reading out the definition which I have provided you over here in this video. A constitution, the next one is, a constitution is a set of rules that guides how a country or state runs. Students, if there are any of the spelling mistakes, kindly ignore it. It may be possible while typing I couldn't find my mistake, so kindly ignore those mistakes also. A constitution, and the next one is, a constitution is primarily a set of rules and principles specifying how a country should be governed. Next, the basic principles and laws of a nation, the basic laws or rules of a country or state. So I don't think that these definitions are only enough for you to understand what is the Constitution exactly. So here I am presenting you an example. See students, there are so many games. I hope you all played the games. All are having the different interests like football, cricket, basketball, volleyball, and many other things. So let's take the example of a football game. Football is a game many of you have interested in it. Football, in a football, what things are there necessary? A football, a ground is necessary for there, and the court जिसमें गोल किया जाता है, those courts, two teams are there, and players played it. And the main thing is that the football is kicked by the leg only. You cannot throw a football by the hand, correct? If I am telling you the correct thing, all of you can understand it, that football is kicked by the leg only, and it cannot be thrown by the hand. Why it is so? Because these are the basic rules of a game. Am I right? In the same way, if you take the another one, like cricket, in cricket what is there? A bat and a ball, two teams are there. A person throw the ball and the another person hits the ball. This is the game. Ab here you cannot kick the ball by the leg. In cricket you cannot do so. So here I mean to say that you take this example, the games को आप जो है एक अलग अलग countries और अलग अलग states की तरह लीजिए. In different countries they all are having different rules. How? Why they are having different rules? As per their society. वहाँ के रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग वहाँ के रूल्स बनाए जाते हैं. तो बेसिकली constitution is found everywhere. Every of the country is have a constitution, and they have their own rules and regulation as per their society only.
अपनी कंट्री के लोगों को, उन कंट्री के लोगों की सोसाइटी, वहाँ के कल्चर को देखकर, वहाँ के डेवलपमेंट, इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है. And the most of the constitutions, many of the things are same in all over the world, and so many rules and regulations are differ from every country. In every country, हर country में अलग अलग तरीके के rules होते हैं. So basically, अब again coming back to the rule game, on the example, if we are playing football and there is no rules and regulations, if you are playing cricket, then there will be no rules and regulations. So what will happen? The person who is doing batting, he will say, I will always do the batting only, I'll not go to give you the bat. मैं किसी और को चांस नहीं दूंगा. ठीक है, कोई रूल ही नहीं है कि आउट भी होना है, रूल्स भी बनने हैं, कोई जीतेगा भी, कोई हारेगा भी. नथिंग विल बी देयर. सेम इन द फुटबॉल, इफ देयर इज नो रूल, देन कुछ भी करो, anything you can do. That is the thing. So here the constitution is a basic principle and laws for a nation, for the people. कॉन्स्टिट्यूशन एक देश में रहने वाले लोगों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक कंट्री को बहुत ही अच्छे और डिसिप्लिन वे में रन किया जा सके. I hope this is clear to you everyone. So basically constitution is a set of rules and principle which is acceptable by the people of a country. Constitution एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, और ये रूल्स और रेगुलेशंस सभी लोगों को फॉलो करने होते हैं एक कंट्री में. एंड टुडे here we are talking about the Indian constitution. So whatever written in our constitution, in one citizen must follow it, everyone must follow it. सभी को ये rules और regulations follow करने होते हैं. So the next one is, why does a country need a constitution? इस कॉन्स्टिट्यूशन की हमको ज़रूरत क्या है? वाई वी नीड इट? क्या विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी कंट्री को रन नहीं कर सकते हैं? सो लेट्स, हेयर आर दी सम पॉइंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट टू रन अ कंट्री विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पॉइंट इज, it tells about the nature of government. Why a country needs a constitution, क्यों ज़रूरत होती है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये हमें बताता है कि किसी कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट चल रही है. स्टूडेंट्स, I don't know whether you have studied earlier or not, but here I am telling you, so I am sliding it. See, tells nature of government means there are two major types of government in world. पूरे वर्ल्ड में दो मेजर तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं. वन इज़ डिक्टेटरशिप, अनदर वन इज़ द डेमोक्रेसी. द वेल known words for you, democracy आपने बहुत बार सुना होगा, dictatorship maybe you have studied or may not be, but now I am telling you that there are only two major types of government in the world, that is the dictatorship and the democracy. Dictatorship means in which all powers are vested in the hand of a single person. dictatorship का बहुत ही सिंपल सा रूट एक definition है, that it is ruled by a single person. इसमें एक पर्सन जो है वो पूरी कंट्री पर रूल करता है. एंड इन डेमोक्रेसी ऑल पर्सन रूल्स इन द कंट्री. सभी लोग मिलकर अपने देश पर राज करते हैं. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी. तो डिक्टेटरशिप बेसिकली there is no election and a single person becomes the ruler for a longer time period, but in democracy you can see that the representative, the rulers, जो हमारे leaders हैं वो हर 5 या 6 साल में change होते रहते हैं. So why government constitution is necessary for us? Because it tells us about the nature of government. ये constitution हमें ये बताता है कि
कंट्रीज़ में किस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो रन हो रही है, वेदर इट इज़ अ डेमोक्रेटिक और इट इज़ डिक्टेटरशिप. So if you will go through the constitution, first you will find out that the India is a democratic country. उसके बेसिक फीचर्स पढ़कर ही पता चल जाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई है. अगर हम किसी डिक्टेटरशिप वाले कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट पेज को पढ़ते ही पता चल जाएगा दैट द कंट्री इज़ हैविंग अ डिक्टेटर, जहाँ पे किसी राजा का या किसी पर्सन का रूल चलता है. Second thing is it creates a bond between the people and the government. Constitution और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? Because ये गवर्नमेंट मीन्स विद आर लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं वो, एंड वी पीपल, हमारे बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वी ट्रस्ट ऑन आवर गवर्नमेंट. हम उस पर ट्रस्ट करते हैं एंड हम उनकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं. वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट को क्या करना है कंट्री के लिए, किस तरीके के रूल्स कंट्री में फॉलो करवाने हैं और किस तरीके के पनिशमेंट्स देने हैं, कैसी एडवाइजरीज फॉलो करानी है, दिस वर्क वी हैव गिवन टू द गवर्नमेंट. लेकिन गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क करती है. विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी वर्क. Each and everything is written in the constitution. That is why we people trust on the government that they cannot do anything wrong, because there is nothing wrong in our constitution. क्योंकि हमें अपने constitution पे भी trust है, तो ये हमारी government जब वही work करती है तो it creates a good bond between the government and the people. Even constitution has given us the authorities टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट ऑल्सो. अगर हमें उनका कोई भी स्टेप गलत लगता है तो हम उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ये राइट भी हमको दिया गया है. तो दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री. अदरवाइज़ आप पहले के एग्जांपल्स लीजिए. सपोज व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ द किंग्स एंड क्वीन वर गोइंग ऑन, तो वहाँ पे व्हाट हैपन, राजा को पता ही नहीं होता था कि उसके लोगों के बीच में क्या चल रहा है, या उसके जो प्रजा है या उनका जो राज्य है, वट एवर द स्टेट, जो भी वो एरिया गवर्न करते थे, उनको यही नहीं पता होता था कि उनके राज्य के लोग जो हैं वो कैसे रह रहे हैं, वेदर दे आर हैविंग फूड और नॉट. और लोगों को भी राजा से कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था. देयर वॉज नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम. तो ना लोगों को राजा के ऊपर ट्रस्ट होता था, ना राजा को लोगों के ऊपर ट्रस्ट होता था. वो जो कुछ भी करते थे बस अपने लिए, अपने अकॉर्डिंगली करते थे. सम ऑफ दी, सभी राजा एक से नहीं थे, बट मैनी ऑफ दी वर देयर. तो दिस शोज़ द एग्जाम्पल दैट देयर इज़ द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है जिससे कि पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री, एक सा यूनिफॉर्म रूल जो है वो अप्लाई किया जा सके, सबके लिए इक्वल. पहले क्या होता था, एक, चलो सपोज़ मान लिया किसी एक स्टेट में एक किंग बहुत अच्छा था तो उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स बना लिए, वहाँ के लोग खुश थे. दूसरे स्टेट में वहाँ का राजा ख़राब था, उसने कुछ और बना लिए. मतलब एक स्टेट में अलग रूल चल रहा है, दूसरे स्टेट में अलग रूल चल रहा है. वाई सो? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वलिटी. अब हमारी पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द इंडिया, सेम रूल अप्लाई होते हैं, चाहे वहाँ पर कोई भी सीएम या कोई भी लीडर क्यों ना हो. नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स द राइट टू पीपल ऑफ कंट्री. इसके बाद क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट. पहले के टाइम में लोगों के पास में राइट्स नहीं होते थे, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी. बट नाउ जब से हमारा कंट्री फ्री हुआ है, वी पीपल आर हैविंग द वेरियस राइट्स. बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं एंड दैट इज़ वाई वी पीपल आर लिविंग अ गुड लाइफ इन आवर कंट्री. इसी वजह से अब हम अपनी बहुत एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी सोसाइटी अपनी कंट्री
में हमने बनाई है, और दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम टेलिंग यू द राइट्स ऑल्सो थी. वॉट काइंड ऑफ राइट? देयर आर दी 6 फंडामेंटल राइट्स. यू मस्ट हैव स्टडीड इट बिफोर ऑल्सो. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational right, right to freedom of religion, and right to constitutional remedies. Right to equality means everyone is equal here. No girl, no woman, no rich, no poor, no black, no white, no religion, no nothing. Equality means humans, we all are equal here. Right to freedom, right to freedom means that we all are free to do the things at our own choices. अपनी मर्जी से अपने काम करने के लिए हम फ्री हैं. The government has given us the right. Then right against exploitation. Exploitation means अगर कोई हमारे साथ गलत काम करता है, या कोई भी किसी को हम किसी दूसरे के साथ में एक रॉन्ग वर्किंग करते हुए देखते हैं, और हम तो then we can take the action against that exploitation too. That is the right against exploitation. Cultural and educational right means we can promote our culture. हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग हैं. They used to wear different type of clothes, they eat different types of food, they speak different type of languages, and so many things are there. So they all are free to do that. Different festivals, different languages, different goddesses, so many. Educational right, that is for everyone. Everyone can take education at the any age. गर्ल, बॉय, चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी ले सकता है, किसी के लिए कोई मना नहीं है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हेयर वी पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन. इफ़ वी वांट टू चेंज आवर रिलीजन वी कैन चेंज इट. इफ़ वी वांट टू फॉलो आवर रिलीजन वी आर फ्री फॉर दैट. इफ़ वी डोंट वांट टू फॉलो आवर रिलीजन देन ऑल्सो वी आर फ्री हेयर. नो वन कैन फोर्स अस फॉर दैट. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मीन्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमको उसमें लिखे हुए किसी रूल में कोई प्रॉब्लम है कि ये जो रूल है, बिकॉज सी स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो आई थिंक 72 ईयर्स हमारी कंट्री को फ्री हुए हो चुके हैं. तो बिफोर 72 ईयर्स इट वाज मेड. 72 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. तो देयर मस्ट बी अ नीड टू do some changes in the constitution as per the time के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत हमको पड़ती है. हम गवर्नमेंट उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकती, लेकिन उसको चेंज कर सकती है. तो दैट इज़ वाई ये राइट भी दिया हुआ है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंगली एज पर द टाइम इज़ पासिंग द गवर्नमेंट कैन चेंज द रूल ऑल्सो. सो वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द राइट टू अस. ये हमें हमारे सारे अधिकार देते हैं. आप सोच के देखिए, बिफोर व्हेन द इंडिया वाज नॉट फ्री, बिफोर दैट वी पीपल वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ राइट. हमारे पास किसी तरीके का राइट नहीं होता था. वी कैन नॉट गिव द वोट्स. हम किसी को वोट नहीं देते थे. कोई भी राजा हमारी मर्ज़ी का नहीं होता था, या हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करा हो कि दिस विल बी द किंग और दिस विल बी द क्वीन फॉर अस. नथिंग वॉज लाइक देयर, है ना. पीपल कैन नॉट डू देयर ओन थिंग्स. अपनी मर्ज़ी से लोग काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वहाँ के राजा कहता था वही करना पड़ता था. दैट इज़ वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. देन इट प्रोटेक्ट अस एज अ गार्जियन. नेक्स्ट वन, गार्जियन. गार्जियन मीन्स जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स. जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, आवर मदर एंड फादर. इफ़ एनी ऑफ द पर्सन टीजेज यू, अगर कोई भी पर्सन कहीं पर भी आपको परेशान करता है किसी भी तरीके से, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं. और अगर आप पेरेंट्स के पास नहीं भी जाएंगे, उनको नहीं भी बताएंगे, स्टिल योर पेरेंट्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. फिर भी आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे कि दिस इज़ माई चाइल्ड, और इसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दूसरा पर्सन इसे हार्म ना करे, है ना. इट हैपन्स, होता है ऐसा. So exactly the same thing is here. We all are the children. हम सब बच्चे हैं यहाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पेरेंट है. वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें गाइड करता है. अगर हमको कोई मारता है,
if anyone is teasing us, if anyone is doing robberies, anyone is kidnapping, doing murder, doing wrong activities, कोई भी हमारे संग wrong activity करने की कोशिश करता है तो हमें उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट डूइंग द रॉबरी इज़ रॉन्ग, किसी पर्सन को हार्म करना रॉन्ग है, किसी पर्सन को बीट करना गलत है, उसे मारना गलत है, तो तभी तो पुलिस आती है। दैट इज़ वाई द पुलिस केम एंड कैचेस एंड गिव्स द पनिशमेंट। Getting my point? So constitution provide us the protection, it is the guardian for us। हमारे देश में हमारी रक्षा करने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज द थिंग। एंड लास्ट वन इज इट कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर। ये क्या करता है? पावर्स को मिसयूज करने से बचाता है। मीन्स सपोज वी आर मेकिंग द लीडर्स, हम अपने लीडर्स बनाते हैं। अब लीडर बनने के बाद रिप्रेजेंटेटिव जो हैं दे गॉट सो मेनी पावर्स, उनके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। दे कैन डू एनी थिंग इन द कंट्री, है ना। PM, CM, प्रेजिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स, लीडर्स, सो मैनी पर्सनस आर देयर वर्किंग अराउंड अस। गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उन सभी के पास कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं, है ना। बट आर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल दोज पर्सनस, उन लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्रोल करता है। इट पुट्स द लिमिट ऑन द पावर, वह उन लोगों की पावर्स पर एक लिमिट लगा देता है, so that no one can misuse their powers, such as let's take an example of any of the leaders. Suppose the president is there. President is the highest authority of our country. But president alone cannot take any of the decision for the country. प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी पावर्स हैं, बट स्टिल प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री के लिए कोई भी डिसीज़न अकेले नहीं ले सकता। ही हैज़ टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड द अदर पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन keeps a limit on the people so that they cannot misuse their power. प्रेसिडेंट कहे, PM बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट कहे कि नाउ आई एम द प्रेसिडेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, या मैं अब दोबारा नहीं हटूंगा, या हमेशा मैं ही प्रेसिडेंट बन के रहूँगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल लिखा है दैट देयर मस्ट बी चेंज आफ्टर एवरी और 5 years और 6 year। हर 5 साल बाद और हर 6 साल बाद लीडर्स को जो है वो चेंज किया जाता है। और अगर वो अपनी फिर भी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो उनको उनके टाइम पीरियड से पहले ही रिमूव किया जा सकता है। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स दैट इज़ वाई अ कंट्री इज़ नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आर कंट्री, वी इंडियन in needs constitution to maintain the discipline in our country, to make our country more good, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब तक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तभी तक हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चन brief whatever I have given you, I am giving you some questions. What is constitution? Why constitution is important for a country? Define dictatorship and define democracy. These questions you have to do in your copy, and here the part 1 is finished. So thank you everyone. I hope that you all got my points, and if you have any kind of query you can contact me